webinar. 15th April 1978, when Barbara Waters from ABC News wanted to interview Muhammad Ali. Muhammad Ali, the heavyweight boxing champion, she went to Muhammad Ali's practicing ring. When she requested him for an interview, Muhammad Ali, boxing champion, he said, "After my practice." Barbara decided to wait. She thought, Ali कितना practice करेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, at least lunch के लिए तो रुकेगा. I will take the interview at lunch time. Barbara ये सोच के रुकी रही, and Ali, he went on practicing. He was practicing with his coach, shedding sweat, building his stamina, practicing new moves, and the time passed. He did not stop for lunch, and evening happened. Barbara then went to Ali and said, "Now even your opponents must have stopped practicing. You can stop too. तुम्हारे जो competitors हैं, वो भी practice करना अब रुक गए होंगे. तुम भी रुक सकते हो." Muhammad Ali looked back at Barbara and just smiled and continued his workout. वो अपना practice करता रहा. At around 10 o'clock, रात को 10 बजे, fully excited and happy, Ali came out of the ring. Ali ring में से बाहर आया और ring में से बाहर आके he looked at Barbara and said, "When I practice as my competitors rest, only then can I say I am the champion, I am the best." अली बारबरा की तरफ देख के कहता है कि जब मेरे कॉम्पिटिटर्स आराम कर रहे होते हैं, तब अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं, तभी मैं अपने आप को चैंपियन कह सकता हूं, तभी मैं अपने आप को बेस्ट कह सकता हूं. This was that one-line interview which Muhammad Ali gave to Barbara in the whole day, and this became the headline of the next day. The sutra of Muhammad Ali's success is that he is persistent and consistent. Something similar to Muhammad Ali, I have all those students who have joined this webinar today. You are the champion, you are the best. क्योंकि while your friends are resting, watching webinars, enjoying food, you are here for a webinar and you are attending it. You are doing something better to improve yourself than your competitor. Next time when you go to an interview, you could say that you worked hard even in the lockdown. Let me cut it short from 1975 to 15th April 2020, when the CEO of ICA EduSkills, Mr. Ankit Shamsukha, addressed a virtual conference of around 1,000 plus ICA members across the country. He was wearing this t-shirt, which you can see on the screen, which said, "Survival of the fastest, not of the fittest." He thanked the center directors and his team members for onboarding all the existing students on the online learning platform. सारे ICA के existing students को online training के लिए उन्होंने start करवाया. And then he said, "It is time to serve those students who are not knowing what to do in the lockdown." इस लॉकडाउन में और क्या किया जाए, इसका स्टूडेंट्स विचार कर रहे हैं. He started a series of career coaching sessions. उन्होंने career coaching sessions शुरू कर दिए. और in this webinars, he said, "Let us educate the graduate and undergraduate students of how to select their career." Thanks to Ajaj, Vishal, and Vinod sir, that they took it up as a responsibility for Pune. And then their teams took it up further. The Superfast ICA teams, Manoj, Reshma, Saugandh, Tina, Aarti, Mayuri, Snehal, Bhavna, all these guys under the guidance of Shobha made this webinar possible in just 5 days. They sent you an invitation, they followed up with you, told you that there is a webinar, and here you are all, 78 of y'all attending this webinar. A good round of applause for you all. आप सबका धन्यवाद इस webinar में आने के लिए, because you are the fastest who have changed. These guys did one very wonderful thing.
They thought of an innovative method. They said instead of deciding the agenda, let's ask the students. They put up a registration form which had a question. Question में ये था कि what do you want to ask the expert? And the expert would answer your questions. They got around 100 questions and they shortlisted 12 of them. So let me tell you that we are going to address only 12 questions today. They sent me the questions in advance and I prepared for it. And I am going to talk in English, Hindi, and Marathi over these questions. So if you guys want to know that how long this webinar would be, we are going to address 12 questions. हम 12 questions के जवाब discuss करेंगे, which are related to your career, and you would be participating in a few polls and quizzes. We would love to understand आपके भी क्या विचार हैं. Before I begin and get into the question, let me look at my chat. आप में से जितने लोग चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलूं, वो चैट में इंग्लिश टाइप करें. जितने लोग चाहते हैं हिंदी में बोलूं, वो हिंदी टाइप करें. और जितने लोग चाहते हैं मराठी में बोलूं, वो मराठी टाइप करें. Let me see your chat before I begin. Okay, so here I have the response. English, Marathi, Hindi, Marathi, Hindi, English, Marathi, English or Hindi, English or Hindi, any language, Marathi and English. Wow. Thank you for your response. धन्यवाद. मैं कोशिश करूंगा कि मैं तीनों लैंग्वेज का प्रयोग करूं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी का. स्टार्टिंग में थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोला, माफी चाहता हूं. लेकिन इसकी अगली स्लाइड से जहां पे कि हम शुरू कर रहे हैं सवाल, यू वुड हैव मोर क्वेश्चंस व्हिच कम आउट ऑफ इंग्लिश एंड द डिस्कशन व्हिच कम्स आउट इन हिंदी एंड मराठी. तो पहला सवाल जो मुझे पूछा गया वो था कि हाउ हैज बीन द लॉकडाउन फॉर यू प्रोफेशनली. आप इस लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहे हैं. और ये शायद स्टूडेंट का सवाल नहीं था, ये स्टाफ मेंबर्स का ही था आईसीए के. तो मैंने कहा चलो उसको भी ले ही लेते हैं. सो ये शुरू सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये तो बताएं आप लोग क्या कर रहे हो. व्हाट आर यू गाइज डूइंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अब आपके सामने एक पोल शुरू करने वाला हूं जिसका कि आपने एक जवाब सिलेक्ट करना है. एक से ज्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आप ज्यादा से ज्यादा इस समय क्या कर रहे हैं इज समथिंग विच यू हैव टू select. Yes, Vishal sir, can I request you to start the poll? Possible? Yes, no. चैट में टाइप कीजिए तब तक कि आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं. लॉकडाउन में आप बुक्स और मैगजीन पढ़ रहे हैं. डायना ने कहा हु एल्स. कैन यू जस्ट टाइप इन योर चैट विंडो आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं. Oh, फार्म टाइम टेबल सही है. 33 people have polled. Okay, 33 people have polled. आपके सामने एक पोल भी आया होगा जिसके अंदर आप अपने जवाब डाल सकते हैं. We need a few more responses. We have 94 people in all. Okay. Any more participants? Let's close the poll now and see what the results are.
Vishal sir, will you do that for us? And can you display the poll results? Oh, so here are the poll results. अगर आप पोल रिजल्ट्स पे देखें तो 28% लोग वॉचिंग वेब सीरीज कर रहे हैं, मूवीज एंड वीडियोज ऑन इंटरनेट 40%, टेलीविजन वॉचिंग 17%, हाँ यार आजकल टेलीविजन पे आ भी क्या रहा है, पुराने सीरियल, फेसबुक 10%, इंस्टाग्राम 28%, वंडरफुल, रिविजन टॉपिक्स ऑफ कॉलेज सब्जेक्ट्स 33%, very very good, attending webinars 38%, attending virtual lectures, doing e-learning 30%, wonderful sir, और exercise, sleeping और eating वाले भी कुछ लोग हैं. So the people who are doing revision and attending webinars are really working professionally on what they want to do in their professional life. Let's see what I did in my lockdown period professionally. सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने शुरू किया था वो था रिमोट कंट्रोल बेस्ड वर्क. बाहर जाना अलाउड नहीं था, ऑफिस में बैठ नहीं सकते थे, तो घर को ही ऑफिस बनाया एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था कि स्क्रीन पे देखना, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन को देखते जाना, और वर्क स्लो डाउन हो गया था, ऐसा लग रहा था. स्लो डाउन यानी क्या? तो 12 से 13 घंटे का काम और फिर बाकी हाउसवर्क आप भी जानते हैं, झाड़ू पोछा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड की भी होती है घर में, राइट? सो दिस वाज व्हाट आई वर्क इन माय लॉकडाउन पीरियड. अगले सवाल पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द जॉब मार्केट इन द बीएफएसआई सेक्टर बिफोर द लॉकडाउन. लॉकडाउन शुरू होने के पहले बीएफएसआई सेक्टर का क्या हो रहा था, कैसा था? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल. मेनी ऑफ यू हियर आर बीकॉम ग्रेजुएट्स, तो आपको ये सारे आंसर्स पता होंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने ये आंसर्स रख देता हूँ. बैंकिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस और इंश्योरेंस फील्ड ये रिसेशन प्रूफ फील्ड कहलाता है, और ये इस रिसेशन में भी सच प्रूव होगा. इस बार के रिसेशन में भी, इस बार के लॉकडाउन और वायरस के बाद भी बैंकिंग, अकाउंटेंट्स और फाइनेंस और इंश्योरेंस फील्ड में रिसेशन नहीं होगा. सेकेंड, आईटी ने इस फील्ड में 20 साल पहले ही बहुत बदलाव कर दिए थे. अगर आपको बैंक्स याद होंगे, किसी जमाने में हम लाइन में खड़े होते थे बैंक्स में पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए. अब हमें बैंक में जाना ही नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ऑनलाइन बैंकिंग कर पाते हैं. ईआरपी जो कि एसएपी जैसे हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में इंडिया में बहुत काम किया है, और काफी कुछ अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ये ऑनलाइन हो गया है. इट इज ऑल क्लाउड बेस्ड. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए है, पीपल लाइक यू, इट इज दैट वी हैव अ ह्यूज डिमांड ऑफ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल. हमारे को ट्रेंड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल चाहिए, जिन्हें की टूल्स आते हैं, टेक्निक्स आते हैं, जो कि अकाउंट्स, टैक्सेशन, बैंकिंग और फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, खुद से हैंडल कर सकते हैं. ऐसे काफी सारे लोगों की आवश्यकता इस जॉब मार्केट को थी. अब बीएफएसआई सेक्टर में लॉकडाउन के पहले क्या चल रहा था और लॉकडाउन के बाद क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं. लॉकडाउन के बाद सिर्फ बीएफएसआई सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर्स की एक बार हम बात कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ पॉसिबल है, कौन से सेक्टर्स में कट नहीं है, ये समझना उतना ही हमारे लिए जरूरी है. तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो अंगूठा है ऊपर वाला ग्रीन कलर का, उसके सामने अब जो जॉब्स आएंगे, जो सेक्टर्स आएंगे, these are the sectors which are growing even during recession, even during the lockdown and even after that. अगर आप ध्यान से देखें तो हेल्थ केयर, मेडिसिन, स्पिरिचुअल साइंसेस, योग गुरुज, एंड अल्टरनेट एनर्जी एंड होम गार्डनिंग, ये सब कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत ऊंचा जाएगा. ई कॉमर्स, डेटा साइंसेस एंड मार्केटिंग सेक्टर्स भी बहुत अच्छा करेंगे. जॉब रोल्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बढ़िया करेंगे. तरीका बदलेगा लेकिन बहुत बढ़िया होगा. इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट एंड गेमिंग इंडस्ट्री वुड बी बूमिंग. ये बूमिंग इंडस्ट्रीज है. दूसरी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें जो थोड़ा नीचे जाएंगी, रेड कलर में है, जो जिनका अंगूठा नीचे है, ये है लग्जरी गुड्स, फैशन, होटल्स खाली पड़े हैं, टूरिज्म, कौन छुट्टियों पे जा रहा है, कौन जाएगा जल्दी, ट्रैवल्स, बसेस खड़ी हैं लाइन में, मॉल्स खाली पड़े हैं, सिनेमा हॉल, वेब सीरीज बेटर्स है, और रेस्टोरेंट
घर के खाने का महत्व तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को भी, नहीं? एंड लाइव स्पोर्ट्स, विराट कोहली भी घर पे बैठा है। ये लोग स्टेडियम में अब जाके कब खेलेंगे, हम लोग कब जाके देखेंगे? इनका भी बिजनेस डाउन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रियल स्टेट, दीज ऑल बिजनेसेस वुड बी गोइंग थ्रू अ रिसेशन पोस्ट द लॉकडाउन। और जो इंडस्ट्रीज को बहुत सारा बदल करना है, जो ना नीचे है ना ऊपर है, लेकिन दे हैव टू चेंज अ लॉट, दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर आईटी एंड आईटीएस, और जो फटाफट चेंज ला सकते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम घर से ही काम करके आराम से कर लेंगे। If you have read the news recently, TCS has decided that 60% of their manpower will work from home, और उनको घर से ही काम करना है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही ऑफिस में आना है। तो वो इतनी जगह का क्या करेंगे? They will rent it out or they will leave it, and that is something which many of these industries will do. Accounts, taxation, banking, finance में भी बहुत बदल होगा। क्यों? क्योंकि अब जो लोग ज्वाइन होंगे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं होंगे, they would be a bit better, and we'll see it in the next slide, ये हम बाकी के स्लाइड्स में देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो बदल हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशन फील्ड में। लेक्चर्स आर गोइंग वर्चुअल, गूगल क्लासरूम्स आर बिकमिंग द क्लासरूम्स ऑफ द 2020 ईयर। लॉजिस्टिक्स में बदल है, मार्केटिंग और सेल्स में बदल है। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें काफी बदल हो रहा है, आणि आपल्याला हे सर्व लक्षात घेणे गरजेचं आहे। का लक्षात घेणं गरजेचं आहे? कारण या इंडस्ट्रीज मध्ये कुठे आपण जाऊन काम करायला पाहिजे ते आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे, आणि त्या हिशोबाने इंडस्ट्री निवडणं गरजेचं आहे। Let's go to the next question. We are at 3 questions down and we have almost 100 participants who have logged in. Wonderful. Let me just take a second to look at the chat. Okay. विशाल सर, पोल आपने बंद कर दिया होगा, डिस्प्ले ऑफ कर दिया है आई बिलीव। आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला पोल आने वाला है। अगला सवाल जो मुझे पूछा गया था वो था व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएट्स इन दिस फील्ड। इस फील्ड में क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए? तो मैंने सोचा पहले स्टूडेंट्स को ही पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स विच यू थिंक आर इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा पोल लेते हैं विशाल सर की हेल्प से। विशाल सर, इफ यू कुड लॉन्च दैट पोल which is about skills, कि क्या skills important है। Here it comes। आपके सामने एक पोल आया है जिसमें कुछ सवाल हैं कि BFSI सेक्टर में टॉप 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके हिसाब से क्या लगता है। आपकी जो बड़ी लिस्ट है, पहला है डेटा एंट्री स्किल्स, हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स इन टैली, MS ऑफिस सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन इनकम टैक्स फॉर्म फिलिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यूजिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, मैनेजिंग GST, attention to details, managing private limited companies as per ROC। ये सारे में से 3 आपको स्किल्स सेलेक्ट करने हैं। जल्दी से कीजिए so that we can see the results too। विशाल सर, यू कैन से अनम्यूट होके कि कितने लोग पोल कंप्लीट कर चुके हैं। $58 out of 97। Wonderful। That's close to 60%। Let's wait for 1 or 2 minutes more। Wow, there are a few students also who are there। 66 out of 98। 30 seconds more। Come on, guys, pick it up। 70। I believe we should stop the poll and show the results, Vishal sir। हाँ सुनील सर, एक ही मार्क का क्वेश्चन है। And here are the results in front of you। Wow, 45% of the students say effective communication skills, which is the largest
answer which people are giving. Awesome, बहुत बढ़िया. उसके अलावा the next after that comes is 58.3, which is GST. Very, very good. And then comes is online income tax form filling, that is 44. And then comes is tally at 40%. Wonderful students. I know you are all so intelligent. मुझे आपसे थोड़ा सा envious feel होने लगा है. Let me tell you what my answers were. मैं थोड़ा मेरे आंसर्स की तरफ आपको ले चलता हूँ. नाराज मत होइएगा. But the after the lockdown, the main and the most important skill would be being masters in online communication technology. What do I mean? These top 3 points. If you can see on your screen, sir, close कर दीजिएगा पोल के results. विशाल सर, डन. पोल रिजल्ट्स क्लोज कर दिए. ओके, सो मास्टर्स इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या देख सकते हैं आप? देर आर 3 important कैटेगरीज: कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज एंड ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आई सॉ व्हेन आई डिस्कस विद द ICR&D टीम, ICR&D टीम के इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च और डॉक्यूमेंट कंटेंट बन के रेडी हो गया है, एंड दे मे बी लॉन्चिंग इट सून. So this is something which you should learn. What else? Apart from these tools, then the most important skill is the survival of the quickest. Yes, like we said, fastest, which was said by Mr. Ankit Shamsukha, the CEO of ICA. This is the adaptable nature of yours, which will help you work in a remote working atmosphere. आपका जो remote working तरीका होगा, that would be the next important skill to look at, जो आपको इस स्किल में डेवलप करना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, you would be forced entrepreneur. What do I mean by forced entrepreneur? GIG, gig economy, is going to be the next big thing. Work with ownership without the boss on your head is the next important skill which you have to develop. These skills are important. Why? Because the world has now changed. The new normal has come up. और आखिरी important skill is resourceful people. What do you mean by resourceful people? मतलब वो व्यक्ति जिसका कि get it done attitude है. वो ये नहीं कहता मैं क्या करूं सर, सर ये प्रॉब्लम है मैं क्या करूं. नहीं, वो ये कहता है सर ये प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, और वो उसको सॉल्व करता है. That is what is the get it done attitude. He should have his own laptop और कंप्यूटर में भी खुद का मोबाइल हो, अच्छा इंटरनेट हो, वो घर से काम कर सके. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. right? This is what we call as positive attitude, right, Ajit? So ये सारी skills की requirement apart from जो आपने skills कही polls के अंदर कही, वो सारे hard skills हैं, functional skills हैं, ये सारी additional skills आप में होनी चाहिए. Let's take this further. अगला जो सवाल मेरे पास था वो आया था, what should the students expect after completing BCom? बीकॉम के बाद स्टूडेंट्स ने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरे दिल में ये सवाल आया कि बच्चों से ही पूछते हैं, स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि बीकॉम के बाद क्या करना चाहते हैं. एक पोल आपके लिए और आ रहा है जिसके अंदर ये सवाल है कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का प्लान कर रहे हो. पोल आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बट यू कैन चूज ओनली वन ऑप्शन. तो इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट करना है. फटाफट सिलेक्ट कीजिए. लेट्स सी व्हाट पीपल आर थिंकिंग हियर. How much percentage? 52 out of 98 voted. Wonderful. A few more responses. 60% done. 65. Great. 30 seconds more. Come on, guys. 70. Yes. 74.
Closing polls. 2 seconds more. And the results. Wow. Do you want to see the results? See the results on the screen. You can see the maximum has come as 23% job as an account professional, 11% people talking about 14.5% people talking about MCOM, MBA 17% people, job in multinational around 14% people. Great response. Now let's see what actually happens when the graduation is completed. Thank you, Vishal sir. Here goes my slide. सबसे पहले ग्रेजुएशन जैसे ही खत्म होता है, लोगों के दिल में आता है छुट्टी, बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब देखते हैं और क्या। और ये सबसे बुरी चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीकॉम के बाद डिग्री हाथ में आई है बॉस, नौकरी नहीं। देयर इज नो जॉब प्रोवाइडर हु इज गोइंग टू सर्च, अरे एक और बीकॉम ग्रेजुएट हो गया है, चलो ढूंढो उसको नौकरी ले जाके दो। सो इफ यू फील कि एग्जाम्स हो गए, खत्म हुआ, या एग्जाम्स नहीं हुए इस बार लॉकडाउन में, अब क्या है, छोड़ो, कैसे जो होगा गवर्नमेंट का देखेंगे, डोंट थिंक इट दैट वे। क्योंकि हॉलीडेज नहीं है बॉस, जिंदगी के हॉलीडेज एक्चुअली अब खत्म हो गए हैं, अब काम करने का समय शुरू हुआ है। दूसरी चीज होती है लोगों के दिल में, वो है कंफ्यूजन। आता काय करू, जॉब तर दिसत नाहीये, चला अजून एक कोर्स करून घ्यावं। हाँ, कुछ और कोर्स कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोचने लग जाते हैं, यार स्पेशली लड़कियां आई बिलीव, कि माँ बाप शादी का प्रेशराइज करेंगे, चलो एमकॉम या एमबीए कर लेते हैं, 2 साल और पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। सो वो भी थोड़ा सा बुरा है। जस्ट लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग बिकॉज आई डू नॉट हैव एन आंसर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। काफी सारे स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेते हैं और फिर पूछा जाए क्या, तो बोले अभी भी पता नहीं क्या। सो यू शुड नो व्हाट you want to do. Third, people who are very optimistic. Confused कुछ लोग हैं, कुछ लोग relaxed हैं, और कुछ लोग बहुत optimistic हैं. And these people are waiting for the campus placement to happen. Sir, इस साल थोड़ा मुश्किल है. Things are going to be difficult. Campus placement seems to be dipping. पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे. तो ख्याल रखिएगा, campus placement may not be the opportunity. और आखिरी चीज ध्यान दीजिएगा, some people are very competitive and they have realized कि इस बार जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन सिर्फ अपने क्लासमेट से नहीं है, अपने कॉलेज वाले के साथ नहीं है, अपने आईसीए के स्टूडेंट के साथ नहीं है, बट इस बार जो कंपटीशन है वो उन लोगों से है जो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, एंड दे कैन बी फ्रॉम सतारा, सीहोर, सुल्तानपुर और श्रीनगर। Yes, friends, now with the changing world, with the gig economy, you might not have to go to office every day. Induction भी शायद आपका स्क्रीन पे हो जाएगा, एंड आपका ज्वाइनिंग लेटर भी भेज देंगे और बोलेंगे कल से काम शुरू, और घर से ही बैठ के काम शुरू करो, सैलरी आ जाएगा, एंड पीपल वुड बी competing for your job from Sri Lanka and maybe even South Africa. So be ready. This world is going to be more competitive. Jobs कम होंगी, पता नहीं, जॉब्स जितनी भी होंगी, लोग मांगने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार अलग अलग फील्ड्स में हुए होंगे, दे वुड लाइक टू कम टू दिस फील्ड। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। 5 क्वेश्चंस तक आ गए हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 50% ऑफ द सेमिनार, एंड वी आर एट 11:30। आई बिलीव विल नीड 30 मोर मिनट्स, बाकी के क्वेश्चंस थोड़े फास्ट हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। After graduation, how do I get a job directly? Graduation के बाद directly job कैसे मिल सकता है? Any guesses? Would you like to type in the chat कि graduation के बाद job कैसे मिले? I have just written down a small process. एक छोटा सा प्रोसीजर मैंने जॉब सीकर्स के लिए लिखा है, आप सब लोगों को पता ही होगा, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर आप डिग्री लेते हैं, काफी अच्छा आपका फाउंडेशन और थ्योरेटिकल स्किल होता है। फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू डू इज टू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स। कॉलेज में हो, इंस्टीट्यूट में हो, पर्सनली हो, ऑनलाइन हो, कहीं पे भी हो, प्रैक्टिकल स्किल्स आप में होने चाहिए। किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के पहले
आपने अगर इंटर्नशिप किया है तो आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट कहलाते हो. यू कैन आस्क फॉर इंटर्नशिप. Internship can be free. You can do work and get an internship certificate. That certificate really helps you to say that you are an experienced person. कोई ये नहीं पूछता इंटर्नशिप में कितना सैलरी मिला. सैलरी इज द लास्ट थिंग टू डू. इंटर्नशिप्स के बाद शुरू कीजिए आपका रेज्यूमे रेडी करना. Once you have the resume ready, then you can go to job portals to post your resume, and then you might get interview calls. Building video resume is the best thing nowadays, क्योंकि तब लोग आपको देखते हैं. आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो आप सुबह बोल रहे थे आपके पोल में, वो दिखाई देते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, build your online network through LinkedIn. अगर आप LinkedIn पे नहीं हैं तो वहां पे जाके अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए. Once you create a network there, you would be able to ask for people about openings, and people can pick you from there, just not as freshers, even for experienced people. और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है जॉब में तो डोंट गेट बोर्ड, डोंट गेट डाउन. अपना मोटिवेशन ऑन रखिए और कुछ ना कुछ अपडेटेड कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस करते रहिए. दीज आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड डू. इस प्रोसेस के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is always asked in an interview, which is always asked by participants wherever they are, कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए, या मैं स्टार्टिंग सैलरी कितनी बोलूं. जब इंटरव्यू में मुझे इंटरव्यूअर पूछता है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, तो मैं क्या कहूं. सो आई हैव पुट इट अक्रॉस टू यू. एक छोटा सा पोल आपसे लेते हैं. क्या ये पोल रहेगा कि एज पर योर करंट स्किल्स व्हाट डू यू थिंक योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी. आपको आपके करंट स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से क्या लगता है पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए. सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन. डोंट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी वेरी पेसिमिस्टिक, बट सिलेक्ट व्हाट यू थिंक एज पर योर स्किल्स. Forty-three out of 96 people have selected. Wonderful. 64. 1 करोड़ का भी ऑप्शन है आदित्य सर, ध्यान से देखिए. 70 people have responded. Wonderful. Closing polls in 10 seconds. Quick. 75. अगर मैं अल्लादीन के चिराग का जिन हूं, अगर मैं तथास्तु बोलूं, तो आप जो सैलरी सेलेक्ट करोगे वो आपको मिल जाएगी. जल्दी से आंसर कीजिए. Okay. So now let's see the results. And here comes the results. Wow. I have 30% people saying 15,000 to 20,000 per month. 22% saying 10,000 to 15,000, which makes it 45%. 50% approximate people are, or even 60% people are between 10,000 to 25,000 scale. There are a very few people less than 10,000 and a very few people around 16%, around 20% people above 25,000 who are talking about what salary as per their current skills they would expect. You're talking about freshers, and if I may compliment you, अगर मैं आपको आपका थोड़ा सा प्रोत्साहन करूं कि आपके जो दिल में सपना है वो हकीकत से बहुत दूर नहीं है. बस इतना ख्याल रखिए कि आपकी स्किल्स योग्य होनी चाहिए. इफ यू आर दोज पीपल, अगर आप वो लोग हैं जो 10 से 40,000 के बीच में आपने क्लिक किया है, तो आपका सपना झूठा नहीं होगा, फेक नहीं होगा. You can get a salary of what you look at.
एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं. I'll give you a small explanation of how you should really look at your salary calculation. First thing, it depends upon demand and supply, job roles, and the city and the company where you are doing the job. डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या कि आज की तारीख में डिमांड कम रहेगी और सप्लाई ज्यादा रहेगा, तो देयर इज अ चांस कि आपकी सैलरी थोड़ी सी नीचे मार्केट में हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. जब डिमांड बढ़ता है, बूम बढ़ता है, मार्केट हाई जाता है, तब डिमांड हाई होता है, लोग कम रहते हैं, एंड देन यू कैन चार्ज हायर सैलरी. सेकंड इज द जॉब रोल. आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं. Are you selecting a job which is related to IT work? Are you selecting a job which is related to accounting? Is it tax related work? Are you going to do wealth management? Are you going to do something which is related to managing customers? आप किस टाइप का काम कर रहे हो, उस टाइप के काम का सैलरी अलग होता है. तो हर जॉब रोल का सैलरी थोड़ा सा अलग होता है. एंड सिटी एंड कंपनी. सिटी एंड कंपनी क्या, तो आप किस शहर में वो जॉब ढूंढ रहे हैं. उसी वेल्थ मैनेजमेंट का जॉब मुंबई में थोड़ा ज्यादा सैलरी होगा, शायद पूना में थोड़ा कम हो, औरंगाबाद जैसे शहर में थोड़ा और कम हो. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. आपकी स्किल्स कितनी भी हो, अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना जरूरी है. आपकी स्किल्स बेइंतहा हो, पर अगर मार्केट में आप किसी ऐसे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जिनका बजट ही छोटा है, और किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जिनका बजट बड़ा है, तो आपका सैलरी उस हिसाब से तय होगा. आपकी सिर्फ स्किल्स देख के ये तय नहीं होगा कि आपको कितनी सैलरी दी जाए. उस कंपनी का बजट ही अगर कम हो, उस जॉब रोल के अंदर अगर रिटर्न ही उतनी नहीं आ रहे हैं, तो आपकी स्किल्स का वो कंपनी क्या करेगा. कंपनी विल से यू आर ओवर क्वालिफाइड सर, माफ करें, एंड यू विल हैव टू एक्सेप्ट व्हाट द कंपनीज रियली लुक एट. Let us look at the second thing. You should ask the real people what the salary is in the scenario, current scenario में. You should talk to your seniors. आपके कॉलेज के सीनियर्स जो जॉब कर रहे हैं उनको पूछिए, लिंक्डइन पे जाइए, जो आपसे एक्सपीरियंस है उनसे बात कीजिए कि क्या सैलरी चल रही है. प्लेसमेंट एजेंसी से बात कीजिए, प्लेसमेंट मैनेजर से बात कीजिए, आईसीए में काफी सारे हैं, एचआर मैनेजर से बात कीजिए. These are the people who can actually tell you what salary is going out in the market. Third very important thing which you should consider while asking for a salary is what is your cost of living. अगर आप मुंबई में जॉब कर रहे हैं, पूना में जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब चाहे हार्ट ऑफ द सिटी में हो, आपका जॉब चाहे हिंजेवाड़ी या मगरपट्टा जैसे आईटी सेक्टर में हो, पर अगर आप वहां पे घर लेना चाहेंगे तो वहां पे 20 से 25 हजार रुपए का फ्लैट आ जाएगा. सर उतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं आएगी. तो यू विल हैव टू फाइंड अ हाउस इन हड़पसर, और you'll have to find a house in Baner or in somewhere in some other location where your cost of living is low. आपको आपकी बेसिक नीड्स चेक करनी पड़ेगी और आपकी डिजायर्स पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा. पहले ही महीने की सैलरी से मुझे आईफोन लेना है, ऐसा ख्वाब अच्छा है, ईएमआई पे ले सकते हो, पर पहले आप अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर लीजिए थोड़ा 2-1 साल, एंड देन डू दैट. ये 9 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा सैलरी के बारे में सोचते हुए, एंड देन यू शुड बी एबल टू डिसाइड. Let's move on to the next question. It's 11:43 by my clock. Eighth question. How should I select the first job? What is more important? Company, salary, or something else? एक और बढ़िया सा सवाल है आपके लिए, जो कैंडिडेट्स जॉब करना चाहते हैं उनके दिमाग में होता है कि मैं पहला जॉब कहाँ पे करूं. Here is the answer. Company is important if it is a very reputed multinational or a brand. अगर वो कंपनी एक मल्टीनेशनल है, आईबीएम में आपका जॉब लग रहा है, या आपका जॉब किसी ऐसी कंपनी में लग रहा है जो कि इंडिया की एक महत्वपूर्ण बड़ा ब्रांड है, देन इट इज ऑसम. मे बी टाटाज है, रिलायंस है, पीडब्ल्यूसी है, अ वेरी वेल नोन कंपनी है, तो इट इज गुड. What is the second important thing? Second important thing is job role. कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं. किस प्रकार का काम इन द सेंस व्हाट,
कि आप अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक इंडियन ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, आप वहां पे क्या सीखेंगे और कैसे करेंगे, दैट्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कंसिडर. सो कंपनी, जॉब रोल, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. थर्ड इज योर रिपोर्टिंग मैनेजर, कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, कैसे होगा. ये बहुत मुश्किल पड़ता है चूज करने में, बट अगर आपका ये दिल है कि आप किसी सीए फर्म में काम करना चाहते हैं या किसी ऐसे फर्म में काम करना चाहते हैं जो घर के पास है, जहाँ पे बहुत लोड नहीं है लेकिन आप सीखना भी चाहते हैं, तो योर रिपोर्टिंग मैनेजर और द ओनर और द बॉस, whoever takes your interview, you should discuss with him. And that's a very important factor which should be considered while deciding a job. Company, job role, reporting manager, and last is the salary. क्यों? क्योंकि salary is always a byproduct. It is more important what you learn and how you perform there. क्योंकि आपके resume में सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिखेगा कि आपने वहां पे क्या सीखा, किस चीज पे काम किया और आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वहां पे आपने क्या क्या चीजें अचीव की, आपने आपके जॉब रोल के अलावा कितना एक्स्ट्रा काम किया, आप कितने महीने और साल वहां पे टिके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रेज्यूमे में दिखेगा. तो ये चीज का जरूर ख्याल रखिएगा. रिमेंबर दीज फोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स: द कंपनी, द जॉब रोल, द रिपोर्टिंग मैनेजर, and what you learned and how your performance was there in your job role. ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज याद रखिएगा कि रेज्यूमे में फेक मत लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा, क्योंकि जो रेज्यूमे पढ़ते हैं वो ट्रेंड लोग हैं, वो आपके झूठ को भांप जाते हैं. अगर आपने कुछ झूठ लिखा है तो एक या दो सवाल में वो समझ जाते हैं, आपको बोलते कुछ नहीं है, बस आपको सिलेक्ट नहीं करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, what you write in your resume should be the truth. नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं साहब. हाउ डू आई बिकम अ मैनेजर? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुतों के दिल में आता है कि मैनेजर बनने का तरीका क्या है. दिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस. इतना आसान नहीं होता है. मैं डेजिग्नेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ कि आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा. स्टेप नंबर 1, टेक योर फर्स्ट जॉब वेरी सीरियसली. टेक एज मच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज यू कैन. आपकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है, बॉस एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, करिए. दैट वुड रियली हेल्प यू टू बिल्ड अ गुड रेपो. कम से कम 2 साल उस कंपनी में काम कीजिए. while you're working in this company, learn new skills. You can do online certifications, you can do part-time learning. While doing all this learning, build good relationship with seniors in the organization. पता नहीं आपका कौन सा सीनियर किसी और कंपनी में जाए एंड दैट सीनियर कैन कॉल यू, यार मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तू आता है क्या. मेंटेन वेरी वंडरफुल relationship with your accounts manager, CFO, CEO, all department heads. इन सारे डिपार्टमेंट हेड्स के साथ में अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट हेड किस कंपनी में सीईओ के रूप में जाएगा और उसे अकाउंटेंट चाहिए होगा तो ही विल से नहीं, आई शुड कॉल रवि, आई शुड कॉल डायना, आई शुड कॉल ईशानी. इन लोगों को मैं बुला लेता हूँ, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे कैन पिक यू अप. सो बिल्ड गुड रिलेशनशिप. यही नहीं, ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्कल अपना बनाइए, लिंक्डइन में नेटवर्किंग कीजिए, पोस्ट गुड थिंग्स, chat, reply, comment on articles. People remember you for that and then they may pick you up. आपका जो अगला सैलरी हाइक होगा वो 50 to 100% सैलरी हाइक हो सकता है अगर आप ये ऊपर के 4 स्टेप्स फॉलो करें. जरूरी नहीं है आप मैनेजर बने, लेकिन अगर आप 10-15 हजार की सैलरी से शुरू किए हैं तो भी 22 से 30 हजार की सैलरी पे पहुंच सकते हैं इफ यू डू दिस 4 थिंग्स व्हाइल यू आर डूइंग अ जॉब. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 से 3 साल अगर आपने काम कर लिया, उसके बाद में आप एंट्रेंस एग्जाम करें, एमबीए करें अगर आप चाहें तो, और तब आपका 6 से 12 लाख का प्लेसमेंट भी हो सकता है. और अगर आप एमबीए नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन डू अ सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट और फिर भी आपको 50 to 100% हाइक मिल सकता है आपके मैनेजरल पोस्ट पे. यानी कि फ्रॉम 20-30,000 you can go to 50-60,000 in around 4 to 5 years and you can get a managerial post. This is a very important step to become a manager. These 10 steps, if you have any questions, you can type it in chat and I can answer your questions now.
आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप चैट में डाल सकते हैं अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ मैनेजर बनने के प्रोसेस में। नहीं, आगे बढ़े। चलिए, लेट्स मूव अहेड देन। इफ आई डू नॉट हैव क्वेश्चंस कमिंग ऑन चैट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल अच्छा सा आया है कि हम अकाउंटेंट पोस्ट पे ही मैनेजर कैसे बन सकते हैं। शुभम, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग जानते हैं तो मैनेजर बनना मुश्किल है, बट आप अकाउंट्स के साथ टैक्सेशन जानते हैं, टैक्सेशन के अलावा अगर आप आरओसी हैंडल करना जानते हैं, आप वो हायर स्किल्स जानते हैं जो कि एक अकाउंटेंट के सीनियर्स को चाहिए होता है, तो आप एक अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट से मैनेजर बन सकते हैं। आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके ऊपर आपको ग्रोथ मिलेगी, अगर नहीं है तो आपको किसी और कंपनी में शिफ्ट होकर आप कर सकते हैं। एमबीए करना जरूरी नहीं है, बट आप ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैनेजर के लिए इंटरव्यू कैसा होता है ये जानने के लिए किसी और वेबिनार में बात करेंगे ईशानी। डायरेक्ट मैनेजर बनने के लिए कहीं तो भी आपको लोगों को मैनेज करने की स्किल सीखनी पड़ती है और वो प्रैक्टिकली आती है। आप पहले कुक बनते हैं फिर हेड शेफ बनते हैं ईशानी। वर्क फ्रॉम होम किसी और दिन विक्रांत, नॉट टुडे। आप ईमेल पे डाल सकते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानना चाहें तो वी कैन डू सम अदर वेबिनार। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। वी हैव 9 more minutes टू गो एज पर दैट 1 hour शेड्यूल। And let me come to the 10th question. Many a students say MBA करना ग्रेजुएशन के बाद अच्छा ऑप्शन है क्या? अगर आप एग्जाम देते हैं कैट का और IIMs के में सिलेक्ट हो जाते हैं या टॉप 10 MBA कॉलेजेस में तो बेस्ट। अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हैं टॉप 10 MBA कॉलेजेस में तो मत कीजिए MBA किसी भी जनरल कॉलेज से, बिकॉज देन यू विल डू MBA लाइक अ सर्टिफिकेट कोर्स। एक सर्टिफिकेट कोर्स के जैसा MBA मत कीजिए। MBA is all about practical skills. Take 5 to 7 years of experience, do an executive or a part-time MBA, or take a break from your career, do a full-time MBA. You can sponsor your MBA yourself. तब तक आप इतना पैसा बचा सकते हैं कि आप खुद MBA कर लें, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आपकी सैलरी देख के आपको बैंक एजुकेशन लोन दे देंगे MBA करने के लिए, and then you can do your MBA after 5 to 7 years. That is one best thing if you want to really do an MBA. Last two questions. How should these students spend their time during lockdown? लॉकडाउन के समय स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने फंक्शनल और टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। तो आप वेबिनार अटेंड कीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड कीजिए, go to various apps. There are many courses which you can do. Strengthen your network on LinkedIn. बार बार कह रहा हूँ, अपना ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क बनाइए। एंड ऑनलाइन जितने भी इंस्टीट्यूट्स में डेमो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कर डालिए। 500, 1000, 2000, 5000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़े, कीजिए। टेक अ रिस्क, यू विल गेट गुड रिटर्न्स। Collect certificates. When you go to an interview after your lockdown, the first question, or at least one very important question which every interviewer will ask, आपने लॉकडाउन में क्या किया? And if you say मैंने सीखा, मैंने रिवाइज किया, इससे कौन से कोर्सेज किए, and you should have a proof, you should have an evidence saying ये मैंने कोर्सेज किए and this is the certificate. If you can show a certificate of webinars or of courses which have dates during lockdown, you would be considered as a smart person, as a consistent person जिसने की काम किया है. So remember to invest this time. तीसरा लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है, 15 दिन का और टाइम है. You can do at least 5 to 6 new webinars and certificate courses. Write to institutes, talk to them and do these courses.
It will really help you in your interview. Last question, then we can do some online questions, answers as well. One important question which comes is, what care should these students take while selecting any courses or institutes? कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते समय क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला, ट्रस्टवर्दीनेस, ये वाकई में लोग हैं क्या जो प्लेसमेंट देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं? उनके आप प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके एल्यूमिनाई के वेबिनार्स अटेंड कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि ये लोग कितने अच्छे हैं. चेक रिलायबिलिटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स और कंट्री वाइड कितना उनका प्रेजेंस है, उनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि ये रिलायबल लोग हैं कि नहीं. तीसरा, उनका कंटेंट अपडेटेड है कि नहीं, ये चेक कीजिए. बेस्ड ऑन द ब्रोशर एंड सैंपल बुक, स्नैपशॉट्स एटसेट्रा, उनका कंटेंट लेटेस्ट है कि नहीं, ये चेक कीजिए. चेक देयर क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स एंड मोड ऑफ टीचिंग, उनके ट्रेनर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनके वेबिनार अटेंड कीजिए. उनका एलएमएस और ई लर्निंग कंटेंट देखिए कि वो कितने अच्छे हैं. ये 4 पैरामीटर्स पे आप इंस्टीट्यूट्स को चेक कीजिए, उनके कंटेंट को चेक कीजिए एंड देन डिसाइड. If you look at these 4 things, then and then only you can really look at how and what you can do for your best things. So with this, I would like to bring on a small survey and ask you कि आप में से कितने लोग अपने करियर के बारे में सीरियस हैं? How many of you really want to get learn a grow model जो कि वर्ल्ड फेमस तरीका है टू डू देयर ओन करियर कोचिंग? अगर आप अपना करियर कोचिंग कराना चाहते हैं तो आपके सामने के पोल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं हाँ, नहीं या मे बी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस कोचिंग. How many answers, Vishal sir? 43 out of 92. 58. 63. 10 more seconds. 66. Once you're done, can we see the results? Okay, here are the results. 92% students say yes, they would like to. And this is in spite, मैंने ये नहीं कहा कि ये free है या नहीं. So let me show you what is in store for you. विशाल सर अगर आप बंद करें poll and next slide पे, you can see the gift which is coming your way. There is a campus to corporate coaching gift coming your way. Look at it. We have 1 more minute time to talk about this. क्या है ये चीज? आपका SWOT एनालिसिस, आपका रेज्यूमे, आपके पेरेंट्स के परमिशन करके आप एक ईमेल लिखें. कहाँ ईमेल लिखना है, दैट यू कैन सी ओवर हियर. आपका ईमेल डालने के बाद में आप का करियर कोचिंग होगा, which would be of the grow model. You would have some preparation steps. आपका एक्शन प्लानिंग होगा और आपका असेसमेंट करके आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा. You will get a certificate of campus to corporate preparation जो आपको मिलेगा, and it is very limited, only for 10 seats, which is free. What you have to do is you have to write your SWOT analysis, you have to create your resume. आपको अपना resume बनाना है, आपका पेरेंट्स का परमिशन लेना है, उनका फोन नंबर उसमें डालना है और आपको एक ईमेल करना है जो नीचे यहाँ पे ईमेल आपको दिख रहा है, jobs@gmail.com पे. और आप अगर चाहें तो इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं. There are only 10 free seats. पहले जो 10 लोग हैं उनके लिए ये फ्री रहेगा. रेस्ट के लिए there might be a charge, but if you are those lucky few who do their SWOT analysis,
आपका रेज्यूमे बना के आपके पेरेंट्स के परमिशन के साथ, उनका फोन नंबर के साथ अगर आप ईमेल करते हैं यहाँ पे, तो यू विल रिसीव अ कॉल बैक एंड देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर दिस कैंपस टू कॉर्पोरेट कोचिंग, जिसमें आपको ग्रो मॉडल सिखाया जाएगा, कैसे प्रिपेयर करना है आगे के लिए वो होगा, एक्शन प्लानिंग होगा, असेसमेंट होगा और सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दिस इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू गो फॉर अ जॉब, जो जॉब के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए है, राइट। नाउ वी आई बिलीव वी कैन हैव सम मोर क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। आपके सवाल आप चैट में टाइप कर सकते हैं और मैं एक एक करके आपको आंसर दे सकता हूँ। सुयश का पहला सवाल है, हाउ डू आई इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। सर बहुत सारे फ्री एप्स इंग्लिश के अवेलेबल हैं सुयश जी, आप उनको यूज कर सकते हैं। विशाल सर, आप भी कुछ आपके सवाल पढ़ के चैट में से अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो। We are exactly at 12 o'clock, 1 hour, and we have closed our webinar. Now is the time for your questions and answers. अगर आप स्टे करना चाहते हैं हमारे साथ तो क्वेश्चन आंसर सुन सकते हैं, थोड़ी देर और हम चलेंगे। विशाल सर, आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ चैट में से सवाल पढ़ के भी बोल सकते हैं। आई एम रीडिंग टिल देन। व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग अ जॉब फर्स्ट। आपको मैंने इशिता एक बड़ा स्लाइड में आंसर किया है, you can look at that and then you can get a good job there. I'm pursuing BAF course recently. I'm in the first year degree college, so am I applicable for career coaching? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट अगर अगर आप इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हैं तो, अगर नहीं तो नहीं। 10 free students will be selected, Neelam, based on their resume and what do they write in their SWOT analysis. उनका SWOT analysis जितना अच्छा होगा उसके हिसाब से वो फ्री स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे नीलम, नॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। ये क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, उनका छोटा सा एक इंटरव्यू भी होगा। Diana says, I have completed my ICA course and I'm doing global talent track. Wonderful, Diana. You can get in touch with the placement manager if you're really looking for a job or something. Thank you for the compliments. I'm planning to do CFA, but I'm not sure whether I should go for it or not. Ishita Jain, if you are looking to go abroad for working, then it is the right thing to look for a job. Then do a ICFI course. Otherwise, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इंडिया में CA और ICWA के लिए काफी महत्व है। नीलम का एक और सवाल है, कब तक? We will close the first batch in 3 days time. Day after tomorrow, we will close it. Today is 2nd. By 5th night, 12 o'clock, we will close taking applications on that for the first batch. No worries, Pradnya. Thank you for your compliments. Yes, you can do CFA while working. You have to register online and then you have to attend their classes. You can choose to work from home for that. SWOT एनालिसिस सीखना और SWOT एनालिसिस खुद के करने में बहुत फर्क है डायना। आपका SWOT एनालिसिस बनाइए और भेजिए आप ईमेल पे। लेट्स सी हाउ वंडरफुल यू हैव लर्न SWOT एनालिसिस। एनी मोर क्वेश्चंस एनीबॉडी? नंदिता, बेस्ट MBA कॉलेज का नाम इंटरनेट पे गूगल करिए, आपका कितना पेइंग कैपेसिटी है वो डिसाइड कीजिए और चेक कीजिए कितना कैट स्कोर उनको लगता है, then you can decide the MBA college. Any more questions, anyone? ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डायना, jobzica@gmail.com. रवि कहते हैं, I'm a BCom graduate, I have got job in Mphasis. Congratulations, you are doing good. You are attending Sintel BFSI group. Very good, Ravi. Keep it up. MBA अगर आप कर रहे हैं, अगर आप BCom के हैं तो MBA finance would be better. वो काफी अच्छा है. You can do dual as well.
So I believe questions are reducing. 12:05 by the clock is better option to do LLB after graduation. रमजान, अगर आप वकील बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो LLB करें. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो शायद किसी कंपनीज के अंदर एज अ लॉ एडवोकेट आप जॉब कर सकते हैं, कंसल्टेंट के रूप में कर सकते हैं. और अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो ही LLB करें. लॉ हैज अ लिमिटेड रिक्वायरमेंट. एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन? चलिए फिर सवालों का सिलसिला कम हो रहा है तो इस वेबिनार को भी क्लोज करते हैं. बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन हैं. ICA का भी एक टेस्ट है, अलग अलग चीजें देखने का, जर्नल एंट्रीज का, जिसमें 10,000 प्लस जर्नल एंट्रीज हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो. कोमल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर. हाँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ईशानी, एंड यू शुड डू इट. चलिए, let's come towards the end of this webinar. I'll just close with what the fastest man Usain Bolt said after winning. He said if he could really meet and learn from two people, he wanted to learn one from Muhammad Ali, the persistent, and from the legend Pele, the football player. So they were all fast, persistent, and innovative. So three things: if you're fast, persistent, and innovative, even this lockdown or the world after lockdown will be in your control. You can do the best if you are fast, persistent, and innovative, like Bolt, like Muhammad Ali, and like Pele. Thank you. All the best for your future. Bye bye. Namaste. Thank you, everyone. Bye bye. Shall we end the meeting, Vishal sir? One word is expected from you to say yes, and then we'll stop the meeting.